بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کاوش نیو یارک ٹی وی کے ساتھ میں دانش ملک۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی خبروں۔ مرحوم سیم خان کے اصالِ ثواب کے لیے دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ مزید یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ بروکلن میں پاکستانی امریکن کمیونٹی کی سماجی اور کاروباری شخصیت محمد اسلم ڈھیلون نے اپنے دوست سیم خان کے چہلم پر ان کے ایصال ثواب کے لیے مکی مسجد میں قرآن خوانی اور فاتحہ کا اہتمام کیا، جس میں کمیونٹی معززین کے علاوہ پی ٹی آئی امریکہ سے وابستہ سیم خان کے دوستوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ پروگرام میں عالمی شہرت یافتہ قاری سید صداقت علی نے تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کیا۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ بعد میں حسان امریک محمد اصغر چشتی نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی۔ مکھ چند بدر شاہ متھے چمک دلاٹ نورانی کالی زلفت اکھ مستانی مہمور اکھی ہن مدبریاں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیم خان کے چہلم میں ان کے دوست افسردہ اور غمزدہ دکھائی دیے۔ کمیونٹی کا یہ بھی کہنا تھا کہ سیم خان نے مذہبی ہم آہنگی کے فروغ اور فلاحی شعبے میں جو خدمات انجام دی ہیں، اس کی بدولت وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ منیر کھٹانہ، جونی بشیر اور وقار خان خصوصی طور پر ورجینیا سے تشریف لائے اور شرکاء سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سیم خان کو لوگوں کا دل جیتنے کا ہنر آتا تھا۔ نیو جرسی اور نیو یارک کا ذکر سیم خان کے تذکرے کے بغیر نامکمل ہے۔ سیم خان ایک ایسی شخصیت جہاں بیٹھ جاتا محفل لگ جاتی، چلنے لگتا تو کارواں بن جاتا۔ ایک ایسا شخص تھا وہ جہاں وہ بیٹھ جاتا تھا محفل لگ جاتی تھی، وہ چلنے لگتا تو کارواں بن جاتا تھا۔ اس میں ایسا کرشمہ تھا کہ لوگ سیم خان کو فالو کرتے تھے۔ پروگرام کے آخر میں قاری صداقت علی نے مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کی اور سب اس میں شریک ہوئے۔ گناہ ہوئی، یا الہ العالمین کو معاف فرما، یا الہ العالمین کے آپ رحم فرما۔ خصوصاً اس ٹائم پر اللہ سیم خان صاحب کو پیش کرتے ہوئے فرما، یا الہ العالمین اپنے حبیب کے صدقے ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، یا الہ العالمین ان کی قبر کو تحدری کا وسعت عطا فرما، یا الہ العالمین کے تمام چاہنے والوں کی دعاؤں کو حق میں قبول منظور فرما، ہم سب کی دعاؤں کو حق میں قبول فرما، یا الہ العالمین ان کو جنت الفردوس کی اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جس نے بہت تھوڑے عرصے میں اتنے کام کر گیا ہے، میں سمجھتا ہوں بالخصوص نیو یارک اور نیو جرسی کے گرد و نواح میں جو پاکستانی امریکن رہتے ہیں، ان کا ایک بہت بڑا نقصان ہے جو شاید کئی سالوں پورا نہ ہو سکے۔ سیم خان کے چہلم کے لیے، ان کی دعا کے لیے اللہ پاک جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سیم خان ایک انتہائی شریف النفس اور شائستہ لہجے میں بات کرنے والے اور بڑے پیارے ہمارے دوست تھے۔ چند سالوں سے ہماری ان سے رفاقت تھی اور جب بھی ان سے ملے ان کو ہمیشہ ہنستے مسکراتے پایا۔ ایک ایسا شخص تھا وہ جہاں وہ بیٹھ جاتا تھا محفل لگ جاتی تھی، وہ چلنے لگتا تو کارواں بن جاتا تھا۔ اس میں ایسا کرشمہ تھا کہ لوگ سیم خان کو فالو کرتے تھے۔ جب بھی ہم کبھی نیو یارک اور نیو جرسی کی بات کرتے ہیں تو سیم خان کا ہمیشہ ذکر سب سے پہلے آتا ہے۔ جس طرح انہوں نے انڈین اور پاکستانی کمیونٹی کو اکٹھے رکھا، انہیں ایک پلیٹ فارم میں اکٹھا کیا، اور جس طرح وہ دوسرے لوگ بھی ہماری جو کمیونٹی کے تھے، کبھی اگر کسی کا جو پتہ چلتا تھا اگر کسی کا جنازہ ہے تو سیم خان وہاں بھی ہوتے تھے، اور اگر کسی بچے کی شادی پہ کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی تھی ہمیشہ لوگوں کی ہیلپ کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے شاید ان سے شاید اتنا پیار تھا کہ زندگی کے آخری ایام میں اللہ پاک نے ان کو اپنے پاس بلایا،
खाना काबा की उनको ज़ियारत हुई, उम्रा किया। जो बड़ी मुश्किल से इंसानों में पाई जाती है। वैसे तो मुझसे सभी बेहतर हैं, बड़ी आला सिफात के मालिक हैं आप सारे भाई। सैम खान के बारे में मैं खुसूसी तौर पे जो है आपकी खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस तरह की सिफत होना बड़ी कमाल की बात है कि उनसे किसी की कोई बात हो जाए, कोई नाराजगी हो जाए, तरह कलामी हो जाए, वो तो वो नहीं करते, गुस्से से भी उनसे बोलता तो वो सिर्फ एक बात आगे से पूछते कि भाई हुआ क्या था, मामला क्या है। जब आप गुस्से से भी बयान कर रहे हैं मामला, कोई भी दोस्त बयान कर रहा है, तो वो आगे से कहते कि मुझे ना इसकी मुझे हम सॉरी, मुझे माफ कर दें। वो इससे ज्यादा तकरार नहीं करते। ये बड़ी बात है। हम अक्सर जो है सफाई देना चाहते हैं, दोस्तों को तकरार करना चाहते हैं, अपना मुद्दा बयान करना चाहते हैं, अपनी बात जो है वो दोस्तों तक जो है वो पहुंचाना चाहते हैं, अपनी सफाई देना चाहते हैं, वो इस चक्कर में नहीं पड़ते। बहुत बड़े कोई बहुत आलिम फाजिल नसीब के कोई मुसलमान नहीं थे, लेकिन वो हमेशा ये कहते थे कि पहले एक अच्छे इंसान तो बनो, उसके बाद मुसलमान भी बन जाओ। लोगों में से हैं कि हम उनके साथ उनकी टीम का हिस्सा थे न्यू जर्सी में, और गालिबन मेरी मुलाकात खान साहब से हुई सैम भाई से 2016 में। यही पाकिस्तान परेड डे के जो वो करते थे और उनके साथ मैंने शमूलियत इख्तियार की। लेकिन उनकी जो दुनियावी एस्पेक्ट तो पता चल गई, जो उनकी जो दीनी एस्पेक्ट है मैं उस पर रोशनी डालना चाहूँगा, क्योंकि हमारे बड़े करीब थे। तो मैंने उनके साथ जो कदम पक्का जिसे कहते हैं कि एक भाइयों की तरह उनके साथ में चला, कि जब उन्होंने कलमा बुलंद किया और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को और एक इंडियन लॉबी के सामने उन्होंने कुछ बयानात दिए जिसकी वजह से उनके पीछे जो है काफ़ी उनको नुकसान। एक ऐसा इंसान जो आखिरी दिनों में उन्होंने हमें नमाज और रोज़ा और जो है दावत दी कि जाके मेरे साथ जो है उम्रे पे चले। तो वो एक ऐसा इंसान था कि उसके अंदर दुनिया की तो एक फिक्र थी, लेकिन उनको अपने साथियों के अपनी दीन की भी उन्हें फिक्र हो गई थी आखिरी लम्हात में। और जैसा कि कारी साहब ने कहा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि अल्लाह ताला को उनको पता नहीं, अमजद नवाज साहब ने भी ये बात की कि कौन सी ऐसी सिर्फ पसंद आ जाती है कि उनको इस उम्र में एक यंग एज हेल्थी वो ले गए। सैम खान के बारे में अभी दोस्त बातें कर रहे थे और उनकी शख्सियत पे गुफ्तगू कर रहे थे, जो सारी की सारी बिल्कुल वजह हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि वो इस ट्राई स्टेट की कम्युनिटी में पर्टिकुलरली जितने मुतहर्रिक थे, पीटीआई के हवाले से, पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से, अमेरिकन सियासत के हवाले से, सोशली लोगों को हेल्प करने के लिए और दिन रात वो इस चीज में मसरूफ रहते थे। इस पूरे कार्य खैर में, इस पूरी एक्टिविटी में अल्लाह करीम को ना जाने उनकी कौन सी चीज, कौन सी नेकी इतनी पसंद आ गई कि अल्लाह करीम ने उनका अंजाम बहुत ही खूबसूरत फरमाया। और उसकी जीती जागती मिसाल है। मैं मस्जिद में बैठा हुआ तहे दिल से हम सारे गुफ्तगू अपने दिल से कर रहे हैं कि सैम खान, जब हम किसी भी सोसाइटी का हिस्सा होते हैं, पर्टिकुलरली पीपल लाइक यू हु आर वेरी एक्टिव इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ऑफ द लाइफ, तो इख्तलाफ आज छोटे मोटे होते हैं, लेकिन इख्तलाफात मयारी हों तो अच्छा है। वो छोटे मोटे इख्तलाफात जो उनसे किसी के भी थे वो मयारी थे, और उन्होंने भी कभी मयाज से गिरने की कभी कोई बात नहीं की थी। और जिंदगी में और अल्लाह करीम का भी ये हुक्म है कि जो लोग चीजों को लेट गो करते हैं, जो आज की बात को कल या आज के अपने दुख को, रंज को, किसी के साथ किसी इख्तलाफ को कल तक नहीं लेके जाते, अपनी लाइफ में कैरी नहीं करते, उन्हें अल्लाह करीम भी पसंद फरमाते हैं और उनकी शख्सियत में ताकत भी आती है। क्योंकि डिस्ट्रक्शन का जो अमल है, किसी दूसरे दोस्त या किसी के बारे में आप नेगेटिव सोचते रहें और एक ऐसा टूटने फूटने का अमल आप अपनी जिंदगी में जारी रखें, उससे बेहतर वो शख्स ज्यादा ताकतवर होता है जो नेगेटिव दूसरों के बारे में सोचने की बजाय
अपने बारे में, अपने गिरदोनवार के लोगों के बारे में पॉजिटिव सोचे, एंड सैम खान वाज वन ऑफ देम। भारतीय अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया की जानिब से लोकसभा में हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का मंसूबा बनाया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मणिपुर फसादात के मामले पर होने वाले पार्लियामेंट के इजलास के दौरान अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। अपोजिशन इजलास में आम आदमी पार्टी, तरनोल कांग्रेस और दीगर पार्टियों ने शिरकत की थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक अपोजिशन जमातों की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मणिपुर में होने वाले फसादात और पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े पर बयान देने का मुतालबा किया गया है। पार्लियामेंट में रूल 267 के तहत मणिपुर फसादात पर बहस का भी मुतालबा किया गया। भारतीय मीडिया का बताना है कि पार्लियामेंट के इजलास के दौरान कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना था कि मणिपुर तशद्दुद पर भारत मोदी हुकूमत से जवाब मांगता है। पार्लियामेंट गैर फ़ाल है, मोदी बराह रास्त सवालात का जवाब देने के लिए खौफज़दा है। इस दौरान भारतीय अपोजिशन का कहना था कि मोदी अपना तकब्बुर छोड़ें और मणिपुर पर मुल्क को एतमाद मिले। मोदी बताएं कि इनकी हुकूमत सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रही है। मोदी हुकूमत और बीजेपी मणिपुर पर अपनी आईनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से भाग नहीं सकती। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले मलऊन सैलवान मोमिका की आखिरत तो बर्बाद हुई सो हुई, दुनिया में भी बदनामी और बेइज्जती मुकद्दर बन गई। स्वीडन में 2 बार कुरान पाक को जलाने की नापाक जसारत करने वाले सैलवान मोमिका की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें रेस्टोरेंट का मालिक मलऊन को बाहर निकाल रहा है। रेस्टोरेंट का मालिक मुसलमान नहीं बल्कि एक ईसाई है, लेकिन वो मलऊन सैलवान मोमिका को अलहामी किताब की बेहुरमती करने पर अपने रेस्टोरेंट में जगह देने को तैयार नहीं। रेस्टोरेंट के मालिक ने सैलवान मोमिका को खाने पीने की कोई भी शय देने से इनकार कर दिया और इसे बाहर निकाल जाने का कहा और निकाल दिया, और सैलवान मोमिका की एक ना सुनी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो सार्फिन ने रेस्टोरेंट के मालिक के जज्बे की तारीफ करते हुए लिखा कि दूसरों के मजहब की तौहीन करने वाले ऐसे ही सलूक के मुस्तहिक हैं। गुज़श्ता 8 कारोबारी रोज़ के दौरान इंटरबैंक में रुपया मुसलसल गिरावट और अमरीकी डॉलर की उड़ान जारी है। इस दौरान अमरीकी करेंसी की कीमत में 13 रुपये का इजाफा हो चुका है। उधर ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर की कीमत भी ट्रिपल सेंचुरी के करीब पहुंच गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक दीगर करेंसियों में यूरो की कीमत 318, बरतानवी पाउंड 370 रुपये, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर 195 रुपये, कैनेडियन डॉलर 219 रुपये, सऊदी रियाल 76 रुपये, मलेशियन रिंगट 63 रुपये, कुवैती दिनार 939 रुपये। भारतीय करेंसी की कीमत 3.5 रुपये हो गई है। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा का ज़ाती बावर्ची झील में डूबकर हलाक हो गया। मैसाचुसेट्स पुलिस ने 45 साल टुफारी कैंपबेल की लाश ओबामा के घर के करीब वाक़े एजगर टाउन झील से बरामद की गई है। पुलिस का कहना था कि एक पैडल बोटर ने इतला दी, उसके साथ जाने वाला शख्स झील से ऊपर नहीं आया। इमरजेंसी सर्विस को शाम तक टुफारी की लाश नहीं मिली थी, जिसके बाद उसे सोनार इस्तेमाल करके ढूंढा गया। ओबामा और उनकी अहलिया हादसे के वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। ओबामा की सदारत के दौरान टुफारी व्हाइट हाउस में बावर्ची के तौर पर काम करता था। मुद्दत सदारत मुकम्मल होने के बाद ओबामा ने उसे अपने घरेलू मुलाजमीन में शामिल कर लिया था। चीनी किसान फ्लैट में पालने के लिए 7 बछड़े ले आया, पड़ोसी परेशान। देहात में अपना घर छोड़कर शहरी इलाके में आने वाले चीनी किसान ने फ्लैट की बालकोनी में पालने के लिए 7 बछड़े ले आया। जनूब मगरबी चीन के सूबे सिचुआन के शहरी इलाके में वाक़ एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में मुंतकिल होने वाले एक चीनी किसान ने अपने पड़ोसियों को उस वक्त सख्त हैरान और परेशान कर दिया जब इस किसान ने अपने घर की बालकोनी में 7 बछड़ों को पालने के लिए ले आया। तसव्वुर कीजिए कि आप शहर के किसी रिहायशी अपार्टमेंट की ऊपरी मंजिल में रिहाइश पजीर हों और सुबह आपकी आंख गाय के बछड़ों की आवाज़ों और गोबर की बदबू से खुले। ये वो परेशान कुन सूरत हाल है जिसका सिचुआन के मज़कूरा बाला अपार्टमेंट के सैकड़ों रिहायशियों को सामना करना पड़ा, और वो अपने नए पड़ोसी की जानब से 5वें फ्लोर पर बालकोनी में मवेशियों को देखकर काफ़ी परेशान हुए। बताया जाता है कि मज़कूरा बाला किसान हाल ही में एक गाँव से गाय के 7 बछड़े जिनका वज़न 10 से 20 किलोग्राम के दरमियान है, उन्हें लेकर इस अपार्टमेंट में मुंतकिल हुआ ताकि इन बछड़ों को पालतू जानवरों की तरह पाल सके। इन बछड़ों की मुसलसल आवाज़ें निकालने और गोबर की बदबू से परेशान पड़ोसियों ने हुकाम से राबता किया, जिसके बाद इन बछड़ों को यहां से मुंतकिल किया गया। इस हवाले से एक वीडियो चीनी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिस पर लोगों ने दिलचस्प तबसरे भी किए हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें काविश न्यूयॉर्क टीवी।